कर उसका पर्दाफाश किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां यूएन के मंच से दुनिया को विकास का संदेश दिया, वहीं इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा है। तो कश्मीर पर इमरान के झूठ की पोल यूएन के मंच से भी सामने आई है। कश्मीर पर देखा होगा आपने, जिस तरह कल इमरान खान अपने तय सीमा से ज्यादा भाषण बोले थे, उसने एक बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व को दिया है। पापी पाकिस्तान अब झूठ पर उतरा। Would lay siege to 8 million people with 900,000 troops. दुनिया को दिखाई कश्मीर की झूठी तस्वीर। Women, children, sick people, locked in as animals. यूएन ने इमरान ने बार बार बोला झूठ। 13,000 boys have been picked up and taken to God knows which destinations. झूठ बोलकर यूएन से मांगी भीख। The United Nations has a responsibility. बोला झूठ। 13,000 boys have been picked up and taken to God knows which destinations. झूठ बोलकर यूएन से मांगी भीख। The United Nations has a responsibility. दुनिया के हर मन से कश्मीर पर मात खाने के बाद इमरान झूठ पर उतर आए हैं। पापी पाकिस्तान और उसके सरताज इमरान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पूरी दुनिया से कोरा झूठ बोला। अपने कश्मीर एजेंडे को सही साबित करने के लिए हर शब्द, हर वाक्य में केवल और केवल झूठ बोला। संयुक्त राष्ट्र के मंच से बोला गया इमरान खान का हर बयान केवल और केवल झूठ का पुलिंदा था। इमरान का भारत पर लगाया हर इल्जाम केवल झूठा था। सबसे पहले कश्मीर पर बोला उनका झूठ सुनिए कि कैसे उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कश्मीर में मानवाधिकार हनन का झूठा रोना रोया। What sort of a mindset would lay siege to 8 million people with 900,000 troops? Women, children, sick people, locked in as animals. In fact, of what I know of England, if 8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. These are human beings. इमरान के बयान के साथ चल रही अमन की तस्वीरों से साफ है कि इमरान की हर बात कोरा और केवल कोरा झूठ थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसके बावजूद इमरान यहाँ नहीं रुके। भारत को गीदड़ भपकी देने के लिए भी उनको झूठ का ही सहारा लेना पड़ा। What do you think the impact will have on people of Kashmir? What do you think they will think? The way they have been boxed in their houses, treated like worse than animals, no rights. Thousands of all the political leadership has been arrested, taken out of Kashmir. Even those Kashmiri leaders who were pro-India have been taken out. 13,000 boys have been picked up and taken to God knows which destinations. So what do they think? What will the people of Kashmir do when they lift the curfew? तो सुना और देखा आपने कि कैसे इमरान ने दुनिया के सबसे बड़े मंच का इस्तेमाल अपने झूठे एजेंडे के लिए किया। शायद इमरान को पता नहीं कि इसी झूठ की वजह से दुनिया के किसी मुल्क ने कश्मीर पर उसका साथ नहीं दिया और भारत की सच्चाई की वजह से हर देश उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूएन में राइट टू रिप्लाई के तहत इमरान खान को भारत ने करारा जवाब दिया है। प्रथम सचिव विदिशा मित्रा ने एक एक करके पाकिस्तान की पोल खोल दी है। भारत ने यूएन महासभा को बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भाषण झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ था। उन्हें कश्मीर में शांति हजम नहीं हो रही है और जेंटलमैन खेल खेलने वाले इमरान का भाषण जहरीला था और गैर जिम्मेदार न था। Mr. President, having mainstreamed terrorism and hate speech, Pakistan is trying to play its wild card as the newfound champion of human rights. This is a country that has shrunk the size of its minority community from 23% in 1947 to 3% today and has subjected Christians, Sikhs, Ahmadiyyas, Hindus. Unfortunately, what we heard today from Prime Minister Imran Khan of Pakistan was a callous portrayal of the world in binary terms.
us versus them, rich versus poor, north versus south, developed versus developing, Muslims versus others. A script that fosters divisiveness at the United Nations, attempts to sharpen differences and stir up hatred are, simply put, hate speech. Rarely has the General Assembly witnessed such misuse, rather abuse, of an opportunity to reflect. Words matter in diplomacy. The invocation of phrases such as pogrom, bloodbath, racial superiority, pick up the gun, and fight to the end reflect a medieval mindset and not a 21st century vision. Prime Minister Imran Khan's threat of unleashing nuclear devastation qualifies as brinksmanship, not statesmanship. Even coming from the leader of a country that has monopolized the entire value chain of the industry of terrorism, Prime Minister Khan's justification of terrorism was brazen and incendiary. For someone who was once a cricketer and believed in the gentleman's game, today's speech bordered on crudeness of a variety reminiscent of the guns of Dara Adam Khel. झूठे इमरान का दुनिया में ही नहीं भारत में भी मजाक उड़ रहा है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आतंक पालने वाला पाकिस्तान कल यूएन में अपने गुनाहों की गठरी लेकर खड़ा था। वहीं कांग्रेस ने इमरान को हताश और निराश राजनेता बताया। हमारे साथ केंद्र सरकार में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। नकवी साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातें रखी, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो है वो अलग ही राग अलापते रहे, वो धमकी देते रहे न्यूक्लियर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ग्लोबल लीडर के रूप में, एक विश्व के एक्सेप्टेड लीडर के रूप में, उन्होंने पूरे अपने उद्बोधन को, अगर उनके उद्बोधन को देखें तो गागर में सागर था। उन्होंने विश्व के शांति की बात करी, विश्व के समृद्धि की बात करी, समावेशी विकास की बात करी और सुरक्षा की बात करी। साथ ही साथ पूरी दुनिया को एक बार फिर से आगाह किया कि इंसानियत और अमन का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आतंकवाद है, और आतंकवाद के वो संरक्षक हैं जो आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं। उनके प्रति एकजुटता के उन्होंने आह्वान भी किया। ये अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही देश को और पूरी दुनिया को मजबूत संदेश देने वाला उनका उद्बोधन था। एक तरफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान थे जिनके सर पर गुनाहों की गठरी थी, और गुनाहों की गठरी से दबे हुए उसके लीडर जो है वो अमन के मंच से खड़े होकर के आतंक की बात कर रहे थे। क्योंकि जिस देश का डीएनए खून खराबे का हो, जिस देश का डीएनए जो है वो आतंकवाद का हो, तो उससे आगे वो बढ़ नहीं सकता, उससे आगे वो सोच नहीं सकता। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पूरी तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बेनकाब हुए। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है और उसका नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए भारत आगे बढ़कर आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें तमाम देशों का साथ लेने की कोशिश होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो भारत की नीति का एक हिस्सा है। भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक सधे हुए राजनेता की तरह कम शब्द, लेकिन उनका हर एक शब्द पूरी दुनिया पर असर डालने वाला था। उन्होंने बुद्ध की बात की, कहा हमारा देश बुद्ध देने वाला है, ना कि युद्ध देने वाला। उन्होंने बिना पाकिस्तान का नाम लिए दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल भी खोल दी और पूरी दुनिया से आतंक के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की। यूएन के मंच से मोदी का आतंकवाद पर अटैक। यूएन पीस कीपिंग मिशंस में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है। आतंकवाद पूरी मानवता के लिए बड़ी समस्या। इसलिए आज मैं
आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। पाकिस्तान का नाम लिए बिना बड़ा हमला। हम मानते हैं कि ये किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमारी आवाज में आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश। आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है। आतंक के खिलाफ दुनिया का एकजुट होना बेहद जरूरी। आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। बिखरी हुई दुनिया किसी के हित में नहीं है। आज विश्व का स्वरूप बदल रहा है। 21वीं सदी की आधुनिक टेक्नोलॉजी समाज जीवन, निजी जीवन, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामूहिक परिवर्तन ला रही है। इन परिस्थितियों में एक बिखरी हुई दुनिया किसी के हित में नहीं है, ना ही हम सभी के पास अपनी अपनी सीमाओं के भीतर सिमट जाने का विकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना यूएन महासभा के मंच से जब आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भरी, इसलिए तो दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई। आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। दुनिया को भी अब ये मानना पड़ेगा कि आतंकवाद और उसे संरक्षण देने वाला देश सिर्फ भारत का नहीं बल्कि सारी मानवता का दुश्मन है। पीएम मोदी की ये बात बहुत दूर तक जाएगी और आतंकवाद के खिलाफ बहुत ही गहरा असर करेगा। En nombre de la Asamblea, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। agradezco al señor primer ministro de la República. यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।